وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا ان اقدامات سے خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان اس نازک گھڑی میں برادر ملک مملکت سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام، سلامتی اور افہام و تفہیم کے لیے مخلصانہ کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ سعودی اتحاد اور حوثیوں کے درمیان مارچ 2022 میں ہونے والی غیر رسمی جنگ بندی کی 4 سال میں پہلی مرتبہ خلاف ورزی۔ سعودی اتحاد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یمنی حوثیوں کا میزائل حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ کراچی میں 27 جون کو رینجرز کیمپ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سہولت کار نیٹ ورک سمیت پکڑا گیا۔ دہشت گردوں کو ہتھیار فراہم کرنے والے اسمگلرز بھی گرفتار۔ حملے میں ملوث سہولت کاروں کے خلاف کارروائی جاری۔ وزیر داخلہ سندھ کی آئی جی اور سی ٹی ڈی حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا کراچی میں رینجرز چوکی پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ دہشت گردوں میں ایک باجوڑ کا رہائشی، 3 افغانی تھے۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر نے کہا کہ محمد بشیر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ بشیر نے تمام سہولت کاری کی۔ دہشت گردوں کو ہب چوکی سے کرنگی لایا۔ بشیر کے ساتھ 13 سہولت کار شامل تھے۔ جانان خودکش حملہ آور تھا۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ دہشت گردوں کے ہینڈلرز افغان سرزمین سے ہدایات دے رہے تھے۔ اسلحہ اور دہشت گردی کے لیے بارودی مواد بھی افغانستان سے فراہم کیا گیا۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی نے مزید کہا کہ گرفتار سہولت کاروں کی بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے ٹریننگ کیمپ میں حملے کی تیاری اور بیان ریکارڈ کرانے کی ویڈیو بھی برآمد کی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے رینجرز ہیڈ کوارٹر پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ کہا دہشت گردوں کو پناہ دینے اور سرپرستی کرنے والے بھی برابر کے مجرم ہیں۔ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والی سرزمین کے معاملے کو سفارتی، قانونی اور سیکیورٹی سطح پر سنجیدگی سے آگے بڑھایا جائے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا جوابی وار۔ آبنائے ہرمز میں 2 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ بحرین، کویت اور اردن کو میزائل اور ڈرون سے ٹارگٹ کیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں الجفیر بیس، اردن میں ایئر بیس اور کویت میں امریکی فوج کا مواصلاتی نظام، ایندھن کے ذخائر، پیٹریٹ دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ ایک امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل داغے۔ جارحیت کے جواب میں دفاعی کارروائیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ پر بحری جہازوں کو غیر قانونی راستے پر جانے کے لیے اکسانے کا الزام لگا دیا۔ اردن کے عوام کے نام بھی پیغام جاری۔ کہا اردن کے عوام خطے سے امریکی فوجی اڈوں کے خاتمے کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ اردن کا ایران کی جانب سے داغے گئے 4 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی فوج کے ایران میں بشہر، چابہار، جاسا، کونارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تجارتی جہاز رانی پر حملے کی ایرانی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کا دعویٰ۔ سینٹ کام نے جاری بیان میں کہا کہ امریکی افواج نے ایرانی ساحلی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات اور بحری صلاحیتوں کے خلاف درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے۔ مشرق وسطی میں 150,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبے ہرمزگان میں گزشتہ رات امریکی حملوں میں 3 افراد شہید ہوئے۔ ایرانی شہر بندر عباس، بشہر اور چوغادک میں دھماکوں کی اطلاعات۔ متحدہ عرب امارات کی آبنائے ہرمز میں اس کے 2 ٹینکرز پر حملے کی تصدیق۔ کہا واقعہ عمانی علاقائی پانیوں میں پیش آیا۔ ٹینکرز پر حملے میں عملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک ہو گیا، 8 افراد زخمی ہیں۔ دونوں ٹینکرز میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کشیدگی میں اضافے کے جواب میں کارروائی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران سے آبنائے ہرمز کھولنے کی درخواست کی ہے۔ کہا درخواست آبنائے ہرمز کے جنوب میں 2 اماراتی سپر آئل ٹینکرز میں دھماکوں کے بعد کی گئی۔ کویت کی اماراتی آئل ٹینکر پر ایرانی حملے کی مذمت۔
ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए मुज़ाकरात को पेचीदा करार दे दिया। अमरीका के साथ ताल्लुकात को अज़ नौ तरतीब देने की ज़रूरत पर जोर। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और आलमी बरादरी के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना बहरी आमदरफ्त के इंतज़ाम तय करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस वक्त पेचीदा मुज़ाकरात जारी हैं। खलीज की सलामती को दरपेश सबसे ख़तरनाक ख़तरात खित्ते के अंदर से नहीं बल्कि बैरूनी खुसूसन इसराइल से आने वाले फैसलों और इक़दामात से पैदा होते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के सूबा इस्फहान में नेतन्स जौहरी मरकज़ के करीब मुबैना जौहरी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की धमकी। ईरान से डील का भी इशारा। नाकाबंदी को फ़ायदा मंद करार दिया। कहा कि ईरान के कोहे कोलांगाज में एक निशाना बनाने जा रहे हैं। ईरानी मफाहमती याददाश्त एक आजमाइश थी। ईरान ने इसकी पासदारी नहीं की। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की फौजी कुव्वत को ख़त्म कर दिया है, उसे पत्थर के ज़माने में पहुंचा दिया है। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गोज़ पर 20% शरह से फ़ीस लेने का ऐलान कर दिया। कहा जिन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ में हम मदद कर रहे हैं वो हमें इसके अखराजात अदा करें। ईरान की दोबारा नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान के अलावा दीगर मुल्कों को आबनाए हुर्मुज़ आज़ादाना इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। अमरीकी नाकाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 15 जुलाई रात 1 बजे शुरू होगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ है और हमेशा रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ बनने की ख्वाहिश पर रद्द-ए-अमल। कहा ट्रंप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो भी आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन गुज़रगाह की सहूलत देता है उसे उसकी खिदमत का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा है। हम मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार करेंगे। ईरान की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स का कहना है कि ईरानी फ़ौज के साथ राबता किए बगैर हुर्मुज़ में अमरीकी इंतज़ामी सरगर्मियों की मज़ाहमत करेंगे। अमरीका से ताउन और लॉजिस्टिक मदद को ईरान की खुदमुख्तारी और सलामती के खिलाफ जंग समझा जाएगा। पाक फौज, एफसी, बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मज़ीद 4 खारजी हलाक। फितनतुल हिंदुस्तान के मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 121 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी, तुर्बत। मुल्क का गर्म तरीन शहर, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी 45, दादू नवाबशाह 43, सक्खर 41, बहावलपुर 40, मुल्तान में 39, क्वेटा इस्लामाबाद 37, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। आज शाम या रात में कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दयामर में गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश और सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। मकानात, बागात, फसलें, राब्ता पुलों समेत दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। मुतासर इलाकों में बिजली और सड़कों की बहाली का काम जारी। खुम्बरी में राब्ता सड़क बहाल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर GBDMA के मुताबिक मुतासर इलाकों में सर्वे टीमें नुकसानात का तखमीना लगा रही हैं। मलबे और बड़े पत्थरों के ढेर के बायस बहाली के काम में मुश्किलात हैं। हालिया मानसून बारिशों और सैलाब से तरबीला डैम में पानी की आमद में इजाफा। तरबीला डैम में पानी की सतह 1501 फुट रिकॉर्ड। इंतहाई सतह 49 फुट कम रह गई। PDMA का तरबीला डैम के स्पिलवेज खोले जाने का अलर्ट जारी। दरियाई सिंध में पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया मुतहर्रिक। शहरियों को दरिया में नहाने, कश्ती रानी और माहीगिरी से गुरेज की हिदायत।
पंजाब में HSN के मायार के बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि लाहौर में तलबा और तालिबात के लिए पहले मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम्स और स्विमिंग पूल्स बनेंगे। 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंडोनेशिया के सरमायाकारों को सूबे में मुतबादिल तवानाई और ज़राअत में सरमायाकारी की दावत, तमाम सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। कराची में इंडोनेशिया पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत का अज़्म सूबे को सरमायाकारी का हब बनाना है। सिंध में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर्स बनाने के लिए तवानाई मौजूद है। हुकूमत माहौल दे सकती है, निजी शोबा उसे आगे लेकर जा सकता है। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में धरना जारी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा, हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो ने कहा है कि सियासी जमातें सानिया ज़ियारत को सियासत की नज़र न करें। दहशतगर्दों और हमसाया ममालिक की प्रॉक्सी से लड़ने के लिए हमारी फोर्सेज हैं। इस सूरत हाल में हम अपनी फोर्सेज सूबे से नहीं हटा सकते। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के कारकुनों का रावला कोर्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमला। आज़ाद कश्मीर पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 800 मुसल्लह अफराद ने रावला कोर्ट में मतियाल मीरा बस टर्मिनल के करीब फायरिंग की। पुलिस ने अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पेशकदमी की तो पुलिस को भी निशाना बनाया गया। ज़राए का कहना है कि पुलिस की मदद के लिए तैनात रेंजर्स नफरी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मौके पर पहुंची। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के कारकुनों की फायरिंग से एक रेंजर एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजबूरी सूरत हाल समेत आज़ाद कश्मीर के उमूर पर तबादला ख्याल। और फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में दो साबिक़ आलमी चैंपियंस फ्रांस और स्पेन आज आमने सामने होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पहला सेमीफाइनल रात 12 बजे। वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें बुध की रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी।